A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. Today we are going to continue our chapter 4 of your geography, and your chapter name is air. In our last class, we have discussed about atmosphere and the components of atmosphere, and under that we will discuss the plentiful gases. Okay, we have talked about nitrogen, which is the first most plentiful gas in the air, and after that oxygen. And we have also talked about carbon dioxide and green revolution. So today we are going to continue this topic, continue with the structure of the atmosphere. Okay, now what is the structure of the atmosphere? So as you all know, our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. Okay, suppose for example, this is our earth's surface. You all are able to see the Mount Everest. Okay, this is a miniature miniature painting of picture of Mount Everest. Okay, and from here we are seeing the different layers of the atmosphere. It starts from the different layers. Okay, we have talked about the atmosphere, and atmosphere is composed of nitrogen, oxygen, argon, hydrogen, and etc. etc. These are some of the gases from which atmosphere is composed. Now this atmosphere is divided into 5 layers. Okay, and it starts from earth's surface. From here onwards you all are able to see the Mount Everest. Okay, earth surface से start होता है. These are troposphere. Just look at this troposphere. First layer आपकी troposphere, stratosphere, okay, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, हाँ, आपको ये सीक्वेंस में लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस में इसका कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, कहाँ से अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है, तो कौन सी लेयर किसके बाद आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर, आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन thermosphere, and after that exosphere. Okay, so first of all uh, mm, we will study about troposphere. What is troposphere? This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm occur in this layer. Okay, so troposphere जो है सबसे important layer मानी जाती है. क्यों? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम जो सांस लेते हैं वो वाली एयर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है. और जितनी भी रेनफॉल हो रहा है, फॉग हो रहा है, या फिर हेल स्टॉर्म, ठीक है, ओले गिर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये जो फिनोमेना है वेदर के, वो सारी की सारी चीजें इसी लेयर में होती है. ठीक है, और ये लेयर कहाँ तक, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर तक. ओके, ये ट्रोपोस्फेयर है. देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आप देख रहे हो फ्रॉम सी लेवल, यहाँ से देखो यहाँ तक जो है ये एवरेज 13 किलोमीटर्स तक की हाइट है. ठीक है, यहाँ पे हम यही रहते हैं. ठीक है, इसी सरफेस में रहते हैं. जो एयर हमें चाहिए होती है, हमें ब्रीथ करने के लिए जो एयर चाहिए होती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. और जितने भी रेनफॉल हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, फॉग हो रहा है, सब इसी लेयर में क्या होता है, मौजूद होता है. ओके, यहीं पे ऑकर होता है. Next type of layer is stratosphere. Now, after troposphere, there is a tropopause. Just look at this tropopause, and after that, which layer comes? Which layer occur? Stratosphere. Okay, stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 kilometers. अब देखिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी थी? एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है. और स्ट्रेटोस्फेयर की अप्रोक्सीमेटली हाइट कितनी है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ये? 50 किलोमीटर तक. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effects of the sun rays. Now,
So stratosphere, this is the second topmost layer of the atmosphere. Okay, it lies just above the troposphere and it extends up to the height of 50 kilometer. Everything like all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm, etc., etc., this layer is almost free from these types of things. Okay, the clouds occur, the rainfall occur, the fog which or hailstorms occurs in troposphere only. Stratosphere is free from these types of things. Okay, uh, it is this layer is most suitable for flying aeroplanes. Aeroplanes को fly aeroplanes कहाँ पे फ्लाई हो रहा है, इस लेयर में एरोप्लेन्स बहुत इजीली, और ये समझ लो कि बहुत आइडल कंडीशन में यहाँ पे फ्लाई करता है, क्योंकि अब देखो क्लाउड्स नहीं है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, क्लाउड्स नहीं है, फॉग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको आइडल बनाता है एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, इन दिस लेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ये लेयर जो है ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये कंटेन करता है ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर ऐसी लेयर है जो हमें सन की रेस से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। सन की जो हार्मफुल रेज आ रही है ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, ओजोन लेयर करता है। जो यूवी रेज आती है उसको आप एक तरीके से ये समझ लो कि छानता है। जो ओजोन लेयर है ना, सन की हार्मफुल रेज को छानता है और फिर उसके बाद वो रेज हमें सेंड करता है। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है हमको सन की यूवी रेज से। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयर देखो, आफ्टर स्ट्रेटोपॉज नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयर इज मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर आता है, एंड व्हाट इज दिस मेसोस्फेयर? This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. Okay, now just this is the third layer of the atmosphere. Okay, after troposphere and stratosphere, this layer comes, and ये जो एटमॉस्फेयर, ये जो एयर है का मतलब ये मेसोस्फेयर, ये जो गैस है, ये आप ये समझ लीजिए, ये जो लेयर है ये कहाँ तक प्रेजेंट, कितने किलोमीटर्स तक प्रेजेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स तक की इसकी हाइट है। ठीक है, जो मेट्रॉइड्स गिरते हैं यूनिवर्स से, आप ये स्पेस से जो मेट्रॉइड्स अर्थ में कभी गिर जाते हैं, तो इस लेयर में मेसोस्फेयर में ही वो क्या करते हैं, ये मेट्रॉइड्स जो हैं इस एयर में एंटर करते ही वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। तो हम now fourth type of layer is thermosphere. After troposphere, stratosphere, mesosphere, the fourth type of layer which occurs is thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. ओके अब देखिए थर्मोस्फेयर में ना जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी जल्दी राइज होता है, और इसकी हाइट भी जो है बहुत ज्यादा होती है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर एक इनर एटमॉस्फेयर की लेयर है जो इसी का पार्ट है। ठीक है, आपको बस अभी मेन जो फोकस करना है वो अभी ये जो 5 लेयर्स है इसके बारे में ही पढ़ना है, बाकी हम आइनोस्फेयर वगैरह बाद में पढ़ेंगे। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ना देखो बेटा, जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स ऊपर हम पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे किलोमीटर्स उनकी एवरेज हाइट जो है वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है। अब ट्रोपोस्फेयर की हमने देखी ओनली 13 किलोमीटर्स, स्ट्रेटोस्फेयर की देखी 50 किलोमीटर्स एवरेज हाइट। आफ्टर दैट हमने मेसोस्फेयर की देखी 80 किलोमीटर्स। आफ्टर दैट हम थर्मोस्फेयर की देखते हैं तो कितने किलोमीटर्स तक की एवरेज हाइट है, 80 to 400 किलोमीटर्स तक की। ठीक है, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। अब देखिए रेडियो ट्रांसमिशन, अब आप सोचते होंगे आपके भी दिमाग में, जैसे मैं छोटी थी तो मेरे को आता था कि ये रेडियो से ऐसे अचानक से आवाज कैसे आ जाती है, कोई हम स्विच भी नहीं लगा रहे हैं तो कैसे कनेक्ट कैसे हो रहा है कि कोई और कहीं पे बोल रहा है और पर हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये जो लेयर है ना, थर्मोस्फेयर वाली लेयर जो है सैटेलाइट्स वगैरह का यूज करते हुए, तो ये लेयर हेल्प करती है कि रेडियो की जो रेज है वो पहुंच सके, ट्रांसमिशन में हेल्प करती है।
In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. और जो रेडियो वेव्स, अब देखिए सैटेलाइट्स हमें कैसे पता चलता है, अपने अगर मिशन मंगल देखी है या फिर कोई ऐसे स्पेस वाली मूवीज देखी है जहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च वगैरह किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो उसमें क्या होता है कि उनको कैसे पता चलता है कि वहाँ ये कि स्पेस में क्या चल रहा है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है, उन्होंने सैटेलाइट वहां पे लॉन्च किया, ठीक है। अब ये जो रेडियो ट्रांसमिशन और ये लेयर जो है उसमें हेल्प करती है वेव्स को ट्रांसमिट करने में। तो अर्थ से जो भी लेयर वेव जा रही है या हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो इस लेयर से स्पेस तक भी जाती है और स्पेस से हमारे तक भी आती है, ठीक है। Radio transmission. Next type of layer is exosphere. Now, the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin layer, बहुत ही पतली layer होती है. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. अब बहुत ही light gases, helium हो गई, hydrogen हो गया, वो space से अर्थ तक जो है यहाँ पे float करती रहती है, ठीक है। So these are the five layers of the atmosphere, this is the structure of the atmosphere कि how atmosphere is created, ठीक है। अब नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप ये बोल सकते हो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रेजेंट हो रही है, नाइट्रोजन वगैरह आपके ट्रोपोस्फेयर में। बाकी सब लेयर्स में कुछ ना कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है, बट ट्रोपोस्फेयर में जो हमें लेयर्स चाहिए, जो हमें गैसेस चाहिए ना ब्रीथ करने के लिए, वो प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, मेसोस्फेयर में भी, और भी ये कॉम्बिनेशन होता है कि यहाँ पे ओजोन ज्यादा है या फिर और भी दूसरी गैसेस है उनका मिक्सचर है। तो ये सब आप डीपली अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। अभी आपको क्या पता रखना है कि देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इस 5 लेयर्स से जो है हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a long period of time reflects the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecasts? अब देखिए, हम बहुत बार क्वेश्चंस सुनने में आता है, ठीक है, कि क्या आज बारिश होगी, या आज आज का जो मौसम है बहुत ज्यादा आज गर्मी होगी, ठीक है, या आज बहुत ठंड होगी, ये ऐसी चीजें हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो आपने क्रिकेट, जो क्रिकेट देखना चाहते हैं या फिर जो जिनको पसंद होता है क्रिकेट देखना, वो भी सोचते हैं कि अगर आज बारिश हो गई या फिर क्रिकेट मैच में बारिश आ गई तो क्रिकेट मैच क्या होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हम डेली लाइफ में क्या है, हमें हमें बहुत सुनने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इमेजिन करें हमारी बॉडी को, अब बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन दे रखी है कि आप अपने बॉडी को एक रेडियो बना लो और अपने माइंड को स्पीकर बना लो, तो वेदर क्या होगा, वेदर एक ऐसी चीज है जो कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, एक काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, जैसे क्या होता है, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। फिडल्स का मतलब आप ये समझ लो कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फिडल, ठीक है, उसको एक टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद इट्स नॉब्स, कंट्रोल नॉब्स। नॉब्स क्या होते हैं, ऐसे बटन समझ लो कि जो उसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सो वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर एक हमारे जो
थोड़ी देर में अभी देखोगे आज सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, अब आप जैसे 2-3 घंटे हो गए तो क्या हुआ, थोड़ा सन निकला तो हमारा डे जो थोड़ा है क्लाइमेट या वेदर क्या हुआ, थोड़ा नॉर्मल हो गया, सनी सा हो गया, ठीक है। तो वेदर क्या है, घंटे घंटे में चेंज होता रहता है, डे टू डे क्या है इसकी कंडीशन जो होती है उसी को हम, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसी को हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड, जैसे कि अब गर्मियों में हम बहुत ज्यादा हॉट हो गया या चिपचिपापन बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, तो वो क्या है, वेदर है। कभी हमें लगता है रेनी आ गया तो वो क्या है, चेंजेस आए, वो क्या है, वेदर है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, ठीक है। अब देखो एक मेन, आप क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है कि मैम क्या डिफरेंस है। वेदर जो है आपके आवर्स टू आवर्स भी चेंज हो सकते हैं, डे टू डे भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट एवरेज जो वेदर कंडीशन होती है किसी जगह की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में रहते हो, ठीक है, तब क्या राजस्थान का नाम सुनते ही सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कितने सालों से यही देखते आते हैं कि जो अप्रैल से जून जुलाई जुलाई अगस्त तक का टाइम होता है यहाँ पे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। फिर दिसंबर नवंबर एंड से दिसंबर जनवरी तक क्या है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो हम जब बहुत लॉन्ग टाइम से किसी वेदर कंडीशन को, एवरेज वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इस टाइम पीरियड में यहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अभी मैं आपसे पूछूंगी जम्मू और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो आप लोग सब एकदम से बोल दोगे मैम वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। वो तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हम लॉन्ग टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि वहां पे क्या है, नॉर्मली ठंड ही रहती है, ठीक है। और विंटर्स के टाइम पे तो वहां पे बिल्कुल बहुत स्नोफॉल वगैरह भी बहुत होता है। तो जब हम एवरेज किसी किसी जगह का, ठीक है, किसी भी प्लेस का हम बहुत लंबे समय से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एवरेज वहां पे वेदर ऐसा ही रहता है, ठीक है, एक जैसा ही रहता है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। बाकी वेदर जो होता है जो डे टू डे लाइफ में चेंज होता है, जैसे कि अभी क्लाउड अभी सपोज थोड़ी ठंड है, ठीक है, तब 2 बजे, अब मैं बोलूंगी कि 2 बजे तक का जो क्या वेदर वैसा ही रहे, हो सकता है चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। जब आवर टू आवर, डे टू डे जब चेंजेस देखते हैं हम एटमॉस्फेयर में, उसको हम वेदर बोलते हैं। और बाकी जो एक एवरेज टाइम पीरियड तक हम देखते हैं, एक प्लेस की एवरेज, एक बहुत लंबे टाइम तक हम देखते हैं कि यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, वेदर कंडीशन गर्म है, ठंडा है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अब आपके फोन में आपके मदर फादर या फिर आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, वेदर फोरकास्ट दिया हुआ होता है। तो वेदर फोरकास्ट क्या होता है, ये हमें डे टू डे, आवर टू आवर हमें वेदर की कंडीशन बताता रहता है कि अब जैसे सुबह कितना 7 डिग्रीज था, ठीक है, उससे भी 5 ओ क्लॉक 5 AM में कितना डिग्री था, 3 डिग्री था, 7 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक तक 7 डिग्री 8 डिग्री था, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेदर, ओके। The day to day changes and day to day or hour to hour changes in the atmosphere is known as weather. And when we observe a weather condition of a place for a long time period, for a long period of time or for a long time period, it represents the climate, okay। Now next is temperature. Now what is temperature, सबको कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, तो घर पे बोलते हैं ना कि थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लो, ठीक है, मेजर योर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है कि द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में टेम्परेचर को समझे, तो वो क्या है कि कितना एक जगह एयर कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसका जब हम डिग्री में उसको हम मेजर करते हैं, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना, गर्मियों में सुना होगा आपने कि आज तो 45 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब जो वेदर है वो बहुत ज्यादा क्या है,
गर्म है, ठीक है। और अभी आज मैंने बोला 7 डिग्री है, तो इसका मतलब है वेदर जो है बहुत ठंडा है। तो जब हम एटमॉस्फेयर की, एयर की डिग्री को, ठीक है, कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसको जब हम मेजर करते हैं उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. अब देखिए जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का खाली डे और नाइट में ही चेंज नहीं होता। आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते होंगे कि जो डे है उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। और जो नाइट्स होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ऐसा देखा जाता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली डे और नाइट में ही हमें टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है। सीजन टू सीजन पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा, सीजन टू सीजन में भी हम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। जैसे समर्स जो है मोस्टली ऐसा देखा जाता है, समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, हम यही ऑब्जर्व करते हैं। जो समर्स है वो विंटर्स से भी, वो विंटर्स से हॉटर हॉटर होती है, ठीक है, गर्म होती है। और विंटर्स में हम नॉर्मली ठंड महसूस करते हैं। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. अब देखिए एक नया वर्ड आया है insolation, ठीक है, कि टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है या फिर डिवाइड करता है। तो अब देखिए इंसोलेशन क्या है। Insolation is the incoming solar energy anticipated by the earth, ठीक है। जो भी सोलर एनर्जी, सोलर इज डायरेक्ट इक्वल्स टू सन, ठीक है, सोलर मींस सन। जो सन से जो एनर्जी आ रही है और अर्थ उस एनर्जी को जितना कैप्चर कर रही है, ठीक है, अपने अंदर ले रही है, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इंसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर में चेंजेस लेकर आता है। अब देखिए, अब दिन है, ठीक है, डे है, डे में आप नॉर्मली अगर नाइट से कंपेयर करो तो जो डे है वो गर्म होता है एज कंपेयर टू नाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सन की रेज हैं वो अर्थ में आ रही है, ठीक है, सन की गर्माहट जो है वो अर्थ में आ रही है। तो इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, इन सोल एशन, सोल मीन्स सन। आपने 6 क्लास में पढ़ा भी है, एक जर्मन वर्ड है सोल जिसका मीनिंग सन होता है, ठीक है। इंसोलेशन, इनकमिंग, इनकमिंग सोल सन, Asian is energy, insolation. The incoming solar energy anticipated by the earth is known as insolation. Okay, now the atmosphere of insolation decreases from the equator towards the poles. Now अब आप सबने क्लास, अपनी क्लास 6th में इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स जो है डिक्रीज होता है। सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज सन, ओके। अब जो सन की रेज आती है वो डायरेक्टली डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है? एकदम डायरेक्ट तो इक्वेटर में पहुंचती है ना, दिस इज इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर। अब ये पोल्स है, आप सबको पता है ये पोल्स होते हैं, ये वाले पोल्स होते हैं ना, मैं बना देती हूँ अर्थ के पोल्स। आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया। अब सन की जो रेज हैं पोल्स तक होते आते आते क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना, बहुत ना के बराबर यहाँ पे सन रेज पहुंचती है, राइट। तो यही बताया है जो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस, जो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी है वो पोल्स तक क्या है, आते आते डिक्रीज होने लग जाती है। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? अब आपको समझ आया, जो आर्टिक सर्कल है, अंटार्कटिका है, ठीक है, ऐसे एरियाज जो पोल्स के पास है वो नॉर्मली स्नो से कवर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जो सन की रेज है वो यहाँ वहां तक पहुंच नहीं पाती। If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow.
ठीक है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो कुछ प्लांट्स जो है, कुछ क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. The concrete and the metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. अब देखिए, अब क्या होगा, टेम्परेचर जो है ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा. जो हम मेटल्स यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में, कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जो रोड्स को बनाने के लिए हम जो आपने ब्लैक कलर का जो पत्थर जैसी चीज देखते हो उसको ऐसा ऐसा फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगी, ठीक है. अब आपने घर पे अपना गैस जलाया और उसमें एक कोई मेटल, जैसे कि आप कढ़ाई चढ़ाते हो, कढ़ाई गर्म होने लग जाती ना. अब कढ़ाई स्टील की है, एल्यूमिनियम की है, वो मेटल ही है ना. तो उससे क्या होता है, वो गर्म होने लग जाता है. वैसे ही अगर सन की रेज बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, और आपने कभी ये महसूस भी किया ही होगा, ठीक है, फील किया होगा समर्स के टाइम पे कि ऐसा कि जो बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमारे टेरेस का जो फ्लोर है, या फिर रोड्स आप देखते हो, अगर कभी आपने जूते खोल के नीचे पैर रख दिया होगा तो बहुत गर्म लगता है. तो ये इसीलिए होता है, अगर टेम्परेचर अगर राइज होगा तो मेटल्स, ऐसा जो रोड्स हैं वो सब बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएंगे. दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और नाइट के टाइम पे ये हीट जो है थोड़ी कम होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सनरेज नहीं होती. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. अब देखिए, नॉर्मली सिटीज में जो है बिल्डिंग्स होती है, लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वहां पे क्राउड, उस एक ही बिल्डिंग में कितने हजार लोग रह रहे हैं, तो वहां पे क्राउड भी ज्यादा है. तो हमारा जो जो अब सिटीज में बिल्डिंग्स बन रही है तो बिल्डिंग्स की हाइट भी ज्यादा होती है. तो इस वजह से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं, और ज्यादा लोग वहां पे रहेंगे तो उनका जो उनकी वो सांस जो एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल कर रहे हैं. तो इस वजह से क्या है, जितनी ज्यादा क्राउडेड प्लेस होगी वहां पे टेम्परेचर वैसे भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सिटीज में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो सन की रेज वहां पे ज्यादा जल्दी पहुंचती है एज कम्पेयर टू जो घर नीचे होते हैं. तो इससे क्या है, वो लोग वार्म एयर को ज्यादा महसूस कर पाते हैं. ठीक है. That's all about today. Thank you for joining the class, everybody. So next, first of all, we will read this do you know box. Okay. After that, I'll end the class. You will be surprised to know that the earth receives only one in, देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब बिलियंस में चली गई है. कितनी बिलियंस पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी. मतलब जो अर्थ है खाली 1%, या ये समझ लो इसका कितना, 2 बिलियन का 1% जो है, या फिर एक पार्ट ही हमारे पास सन की एनर्जी पहुंच पाती है. तो उसमें भी हम कभी कभी क्या है, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है. हम कितना हॉट फील करते हैं समर्स के टाइम. तो सोचो अगर इतना इसका 2% भी हो गया या 2 पार्ट भी हो गया तो हमारी क्या हालत होगी. ठीक है. So that's all about today. Thank you everybody for joining the class.